Yes, they said God bless you all as well. Same to you. Amen. Today I come with a message for you. Sorry. Today I come with a message for you. आज मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आई हूँ, एक पैगाम लेके आई हूँ. I bring you this message because I love you and because God loves you. मैं आज ये पैगाम आपके लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं आपसे और खुदा आपसे मोहब्बत रखता है. 2,700 years ago, there was a prophecy 2000 साल पहले spoken. एक कलाम There was बोला a गया. Yes. There was a prophecy spoken by Isaiah the prophet. और असाया नबी की मार्फत एक नबूवत हुई. He prophesied that God will send a savior into the world. और उस असाया नबी ने बताया कि एक मुनज्जी आने वाला है. He prophesied that this savior will save mankind from darkness. और उसने इस बात को बताया कि वो तरीकी में नूर की मानित चमकेगा. That he would save mankind from their suffering. और वो उनके लिए जो बीमारी में मुश्किल में हैं उनके लिए शिफा के तौर पर नाजिल हुआ. From sickness and bondages. गुलामी और बीमारी में शिफा देने के लिए. I want to read you this prophecy in Isaiah chapter 9 verse 2. और मैं खुदा के कलाम में से ये पढ़ के बताना चाहती हूँ. It says, the people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death. तरीकी में है रोशनी को देखेंगे. Okay, let's start from the beginning. The people who walked in darkness have seen a great light. और जो लोग तरीकी में उन्होंने नूर को देखा. Those who lived in the shadow of death, the light has come upon them. और जो मौत की तरीकी में रहते थे उन्होंने जिंदगी के नूर को देखा. This was prophesied 2,700 years ago. और ये नबूवत 2000 साल पहले हुई. It's telling us that people walk in spiritual darkness. और ये हमें इस बात को जाहिर करती है कि लोग हैं जो रूहानी तरीकी में थे. In oppression, sickness and sin. और लोग बीमार में और तरीकी में और मुश्किलात में और गुलामी में अपनी जिंदगी गुनाह की गुलामी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं. It was prophesied that those who live in this darkness will see a great light. और असाया नबी ने फरमाया कि जो लोग तरीकी में गुलामी में और इसमें रहते हैं वो एक रोशनी को देखेंगे. That a great light will shine upon them in that darkness. और वो जो नूर वो तरीकी में चमकेगा. This prophecy is talking about the savior of the world. और ये जो नबूवत हुई थी वो दुनिया के निजात दहिंदा यानी खुदावंद यीशु मसीह के लिए असाया नबी ने की. This prophecy that was prophesied 2,700 years ago is speaking about the Messiah. और ये जो नबूवत 2000 साल पहले हुई असाया की तरफ से ये मसीहा यानी यीशु मसीह की तरफ थी. The Messiah who will save mankind from darkness. Sorry. The Messiah who will save mankind वो from तरीकी में darkness. नूर की मानित आया. It's speaking about the savior of the world who will bring salvation. और वो दुनिया में निजात और नूर को देने के लिए इस दुनिया में आया. Who will bring freedom and healing and joy.
जो आज़ादी को, खुशहाली को, खुशी को और हमेशा की ज़िंदगी को ज़िंदगी सॉरी जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए इस दुनिया में आया। It's speaking about the Savior of the world who will lift oppression off of people. और ये उस मसाया के बारे में था जो दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। The one sent by God who will bring healing to the sick. और जो बीमारों को शिफा देता था। The one sent by God who will bring freedom to the oppressed. और जिसने गुनाह की गुलामी में एक हमेशा की जिंदगी को जाहिर किया। The one sent by God who will save mankind from their suffering. और वो वाहिद खुदा जिसने इंसान को गुलामी से, गुनाह की गुलामी से बचाया। It's speaking about a great light coming into this dark world. और ये उस हमेशा की जिंदगी और एक नूर की मानिद जो इस दुनिया में आया। This prophecy was prophesied 2,700 years ago. और ये जो नबूवत थी 2000 साल पहले असाया नबी की मार्फत। I want to read you a scripture that tells us when this light came into the world. और मैं खुदा के कलाम में से ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि कब ये नूर दुनिया में आया। It's in Matthew chapter 4 verses 13 through 17. और ये मत्ती 4 बाब और उसकी 17 से लेके 22 तक लिखा हुआ है। It's speaking about the Messiah who is already here, and it says he left Nazareth. और ये मसीहा के बारे में लिखा हुआ है जो इस दुनिया में नजात के तौर पर आया। It says he came and dwelt in Capernaum. और वो इस दुनिया में this is a region. हमेशा की जिंदगी sorry yes can you hear me? He came to dwell in the region Capernaum. और वो हर मजहब के लिए, हर कबीले के लिए और हर बशर के लिए इस दुनिया में आया। This area is by the sea. और उसने और खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ किसी एक एरिया या किसी एक कौम या एक कबीले के लिए या एक बशर के लिए इस दुनिया में नहीं आया। It is in the regions of Zebulun and Naphtali. और sorry it is in the area Zebulun and Naphtali areas. They are areas. Yes. और वो यरूशलेम के इलाका में पैदा हुआ। And the reason why the Savior went there is so that the prophecy will be fulfilled that was spoken by Isaiah the prophet. और इसका जो मकसद है कि यीशु मसीह वहाँ पे क्यों पैदा हुए, वो इसलिए कि जो असाया नबी की मार्फत जो नबूवत हुई थी वो पूरी हो सके। And the prophecy was this: the people who sat in darkness have seen the great light. और वो नबूवत के जो लोग तरीकी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं वो एक नूर को देखें। And those who sat in the shadow of death, the light shone upon them. और ताकि वो दुनिया के नूर को खुदावंद यीशु मसीह को देख सके, ये जो असाया नबी की मार्फत नबूवत हुई थी। So it's telling us that the prophecy was fulfilled. The light came into the world. और ये जो असाया नबी की मार्फत जो नबूवत हुई थी, ये हमें इस बात का सबूत देती है कि दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह नूर की मानिद आए। The light shone upon the people who were living in darkness. और वो जो नूर था वो तरीकी में और गुलामी में चमका। That light was Jesus Christ, the Son of God.
और वो जो नूर था वो खुदावंद यीशु अल मसीह था, वो खुदावंद यीशु अल मसीह था, खुदा का बेटा। The आमीन। Savior of the world is Jesus Christ, the Son of दुनिया God. का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। Hallelujah. Amen. Amen. And so Jesus came onto the earth as the promised Messiah, as the Savior. यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि यसाया नबी की मार्फत जो नबूवत हुई थी वो पूरी हो सके। And he fulfilled the promise, the prophecy spoken by Isaiah the prophet. और वो जो यसाया नबी की मार्फत नबूवत हुई थी उसको खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया ताकि कलाम पूरा हो। People saw the great light. और लोगों ने एक अजीब नूर को देखा People received salvation. और लोगों ने नजात को कबूल किया People were set free from bondage and oppression. और जो लोग बीमारी में से, डिप्रेशन में से आजाद हुए The sick people got healed. और जो लोग बीमार थे उन्होंने शिफा पाई They were forgiven of all sins. और उनके तमाम गुनाह माफ हुए The power of sin was broken off of them. और जो गुनाह की ताकत और जो गुनाह ने उनको घेरे हुआ था वो खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत उस नूर की बदौलत उस नूर ने उस गुनाह को, उस तरीकी को खत्म किया। People were living in darkness and the light came and shone upon them. और लोग तारीकी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे पर वो नूर की मानिद आया और उसने नूर की मानिद सबको रोशन कर दिया। And I want to help you understand what that looked like and what that looks like today. और आज मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश में हूँ और आज आपकी मैं मदद करना चाहती हूँ इस बात को समझने में कि वो जो नूर था उस वक्त तरीके में किस तरह चमका और आज मैं उम्मीद रखती हूँ कि वही नूर आज इस जगह पर भी चमकने को है। Yes, amen. And to help you understand, I will take you to Matthew chapter 11, verses 4 and 5. Sorry? To help you understand what this light looks like, I will take you to Matthew chapter 11, verses 4 और मैं and 5. मत्ती 11 बाब this verse? Sorry, Matthew chapter 11, verses 4 and 5. और हम मत्ती 11 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में भी ये देखते हैं। It says, Jesus answered them and said, Go and tell खुदा John के the कलाम में things यूं which you लिखा hear and है see. कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। Jesus said, the blind see and the lame walk. यीशु ने कहा कि लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। The lepers are cleansed and the deaf hear. और जो बैठे थे वो सुनते हैं। The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. और जो मुर्दे हैं वो जिंदा होते हैं और जो गरीब हैं वो खुदा के कलाम को सुनते हैं। So when Jesus came into the world, he was the light. और जब यीशु इस दुनिया में आया तो वो नूर की मानिद आया। And that light shone wherever there was darkness. और वो जो नूर था वो उस जगह चमका जहां तारीकी थी। And that looks like the sick being healed. और वो इस मानिद था कि और उस नूर की मानिद जो बीमार थे वो शिफा पाते थे। That looks like those who are in slavery are set free. और वो इस तरह था कि जो लोग गुनाह की गुलामी में थे वो भी उस नूर की मानिद शिफा पाते थे। That looks like the dead being raised. और वो इस तरह नूर दिखता था कि जिस नूर की बदौलत मुर्दे कब्र में से जिंदा हो जाते थे। That looks like those who are in darkness
receive the light. और वो नूर ऐसा था जो तरीकी में जो वो नूर ऐसा था जिसको तरीकी अपनाती थी और जो तरीकी खत्म हो जाती थी और नूर चमक जाता था. Amen. आमीन. I want to share my testimony with you. और आज की रात मैं आपके साथ अपनी गवाही को भी शेयर करना चाहती हूँ. I too lived in darkness. और मैं खुद भी अपनी जिंदगी में बहुत तारीकी में रहती थी. Darkness in my mind, in my heart. और हर वक्त मेरे दिल में तारीकी बदी और मेरे जहन में तारीकी बुरे ख्यालात और गुनाह से बड़ी हुई मेरी जिंदगी थी. Darkness in my body as sickness. और मेरे जिस्म में बीमारी थी और मेरे जिस्म में तारीकी भी थी. I lived in darkness. My life was one of darkness. और मैं अपनी जिंदगी को तारीकी में बसर कर रही थी. One night I lay on my bed. और एक रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी. I had given up on life because I had tried everything and nothing was working. Sorry? I had given up on life because I tried everything, nothing was working. और मैंने अपनी जिंदगी को खुदा को देना चाहा क्योंकि मैंने उस नूर को देख लिया था. My mind was oppressed. The sickness was in my body. और मैं हर वक्त परेशान रहती थी और हर वक्त मेरा जिस्म वो जो बीमारी का बोझ लिए फिरता था. I was slave to depression. और मैं गुनाह की गुलामी में अपनी जिंदगी को बसर कर रही थी. I was slave to oppression. और मैं हर वक्त डिप्रेशन का गुनाह का परेशानी का शिकार रहती थी. I was a slave to sin. और मैं गुनाह की गुलाम बन चुकी थी. And I lived in darkness. I didn't know God. और मैं अपनी जिंदगी को बड़ी ही ज्यादा तरीकी में बसर कर रही थी. I didn't want to live anymore. और मेरी जिंदगी इस तरह हो चुकी थी कि मैं और अपनी जिंदगी को बसर करना नहीं चाहती थी. One night I lie on my bed. और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपने आप को मारने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. And I looked up. I didn't know who I was speaking to, but I said, I don't know who you are. मैं ये कर रही थी तो मैंने ऊपर देखा कि मुझसे कोई बात करना चाह रहा है तो मैंने ऊपर अपनी तरफ देखा. I said, I don't know who you are, where you are, but I need to know the truth. मैंने कहा कि मैंने किसी को देखा और मैंने उसको कहा कि मैं तुझे नहीं जानती और ना तू मुझे जानता है, पर मैं सच जानना चाहती हूँ जिंदगी का. Suddenly a light came down from heaven and it filled my room. और अचानक से आसमान से खुदा की तरफ से एक रोशनी आई मेरे कमरे में. This dark room was filled with light. और वो जो तारीकी से बड़ा कमरा था वो नूर से भर गया. Amen. I mean, supernaturally my eyes closed. और मेरी आंखें बंद हो गई, मैं उस नूर को देख ना पाई. And they stayed closed for 3 hours. और कम से कम 3 घंटे वो नूर मेरे कमरे में रहा. In the 3 hours, this light was working in my mind, in my soul, in my body. और 3 घंटे वो जो नूर था वो मेरी आंखों में, मेरे बदन में, मेरी रूह में, मेरे दिल में वो नूर काम करता रहा. This light was healing my mind, healing my body. और वो जो नूर था वो मेरे बदन को, मेरे दिल को और मेरे दिमाग को सुकून दे रहा था. The light was changing me.
और वो जो नूर था वो नूर मुझे बदल रहा था। After 3 hours, my eyes opened. और 3 घंटों के बाद मेरी आंखें खुल गई And I was a new person. और मैं एक नई जिंदगी में एंटर हो गई और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई और उस दिन से मैंने एक नई जिंदगी का आगाज किया। Hallelujah. 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 Praise the Lord. The darkness in my mind was gone. और जो मेरे ज़हन में तारीकी थी वो भी जाती रही The darkness in my soul was gone. और जो मेरी रूह में तारीकी थी वो भी जाती रही। I looked around in my bedroom, everything looked different. और जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे सब कुछ मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो गया Because everything was different. क्योंकि हर चीज मुख्तलिफ हो गई थी The light came to me. और रोशनी मेरी तरफ आई। From that day on, I have been a changed person. और उस दिन से मैं एक दूसरी दुनिया में मतलब मैं बदल गई, मैं पुराने जैसी ना रही। I heard in my spirit that night that I have to purchase the Holy Bible. और उसके बाद और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई कि पहले मैं अपने पैसे को, अपनी चीजों को फजूल चीजों में, अखराजात में, नशे में और तारीकी की जिंदगी में बस सस्पेंड करती थी। और उसके बाद मैंने उस दिन के बाद जब नूर मुझ पे चमका तो मैंने अपनी पॉकेट मनी में से, अपने पैसों में से मैंने एक बाइबल को परचेज किया, मैंने खुदा का कलाम को खरीदा। Hallelujah. And so I did, and I began reading. और मैंने उसको खरीदा और आहिस्ता आहिस्ता मैं उस कलाम को पढ़ना शुरू हो गई। And I found in the Bible where Jesus said, I am the light of the world. और तब जब मैं पढ़ती रही खुदा के कलाम को, तो खुदा के कलाम में जब मैंने पढ़ती गई तो मैंने इस बात ने मेरी जिंदगी को बदला कि नूर के खुदा का कलाम है जो वो तारीकी के लिए नूर है। Immediately I knew that light is Jesus Christ, the Son of God. और उसके बाद मैंने इस बात को कबूल कर लिया और इस बात को मैंने जान लिया खुदा का कलाम पढ़ते हुए कि वो जो रोशनी है वो खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा का बेटा जिंदा खुदा है। आमीन। Amen. Hallelujah. I want to take you to the book of John to read that to you. John chapter 8 और verse 12. मैं इसी साथ आपको हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील में से भी इस चीज को देखते हैं। This is Jesus speaking, and he says, और खुदावंद यीशु अल मसीह यूं फरमाते हैं, he says, I am the light of the world. कि मैं दुनिया का नूर हूं। He said, whoever follows me will not walk in darkness. और खुदावंद यीशु मसीह ने यूं फरमाया कि जो मेरे पीछे चलता है वो कभी तारीकी में नहीं गिरेगा। Whoever follows me will have the light of life. और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो हमेशा के लिए नूर पाएगा। I began following Jesus, the Savior, the Son of God. और मैंने उस तारीकी को उस दिन से फॉलो करना और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। That was just over 5 years ago. और ये कलाम की बदौलत हुआ। I have never again walked in darkness. और उसके बाद मैं आज तक तारीकी में वापस नहीं गई। Jesus Christ is the light of the world. और यीशु अल मसीह दुनिया का नूर है। He is the Savior of the world.
और वो दुनिया का निजात दहिंदा है। He's the promised Messiah that was prophesied by Isaiah 2,700 years ago. और उसने 2000 साल पहले उस नबूवत को पूरा किया जो यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई थी। Those who follow the Son of God walk in the light, not in the darkness. और जो कोई खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा के बेटे को फॉलो करते हैं वो तारीकी में नहीं बल्कि नूर में अपनी जिंदगी बसर करेंगे। Those who walk in the light are guided and have eternal life. और जो नूर को फॉलो करता है वो रोशनी में अपनी जिंदगी को बसर करेगा। Today I'm walking with Jesus. I'm walking in the light. और आज मैं खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रही हूँ। इसका मतलब आज मैं अपनी जिंदगी को नूर में बसर कर रही हूँ। And I have come to tell you, you do not have to stay in darkness. There is और मैं a आज light. आपको ये बताने आई हूँ कि आपको घोर तारीकी में अपनी जिंदगी को बसर नहीं करना। The light came into this world. और जो रोशनी इस दुनिया में आई, The light is still in this world. और वही रोशनी आज भी इस दुनिया में है, खुदावंद यीशु अल मसीह। The prophecy was fulfilled 2,000 years ago when Jesus came. और 2000 साल पहले जो नबूवत की गई थी वो आज पूरी हुई है। That's 700 years after the prophecy was spoken. और 7000 साल पहले ये नबूवत बोली गई थी You do not have to live in darkness any longer. कि आपको और तारीकी में अपनी जिंदगी को बसर नहीं करना, Those who receive the light do not walk in darkness. क्योंकि जो रोशनी को कबूल करता है वो आगे तारीकी में अपनी जिंदगी को नहीं बसर करता। But those who reject the light reject God's plan for salvation. और जो नूर को रिजेक्ट करता है वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को तारीकी में बसर करता है। Today I come with a message for you. और आज मैं इसी पैगाम की बदौलत आपके पास आई हूँ। Today the light of God comes upon you. और आज खुदा की रोशनी आज आप सबके ऊपर आने को है। And you have a choice to receive the light or to reject और it. आपके लिए आज ये खुशी की बात है कि आप उस रोशनी को रिसीव करने वाले हैं। Jesus Christ is the light of the world. और यीशु अल मसीह दुनिया के लिए नूर है। He is the Son of God, और वो खुदा का बेटा है। the Savior who came to save the world. और मुनज्जी इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आया। The promised Messiah. और उसने The promised Messiah. और ये मसीह का वादा था। If we reject the light, we are rejecting God's plan for salvation. और अगर हम उस रोशनी को रिजेक्ट करते हैं तो हम जो नजात के लिए खुदा का प्लान है हमारे लिए, हम उसको भी साथ रिजेक्ट कर देते हैं। This means we stay in darkness. और इस बात का ये मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को तारीकी में बसर करते हैं। This means we stay in sin. और इसका मतलब कि हम गुनाह में अपनी जिंदगी को बसर किए जाते हैं। This means we stay separated from God. और इसका मतलब कि जो खुदा की तरफ से प्लान है, जो हमेशा की जिंदगी है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। And it doesn't have to be like that because there is new life for you today. क्योंकि अब आपको तारीकी में और जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज
आपके पास खुदा की रोशनी और नूर इस कलाम की बदौलत आया है। Jesus is still saving people today. और खुदा जो 1000 साल पहले लोगों को बचाता और शिफा देता था, आज भी वैसे ही अपनी कुदरत और अपने फजल की बदौलत वो अपने लोगों को बचाता है। He is still healing people today. और वो आज भी लोगों को शिफा देता है। He is still setting people free. और वो आज भी लोगों को आजाद करता है। He is alive. He is with me. He is with you. और वो जिंदगी है, और वो जो जिंदगी मेरे साथ है वही जिंदगी आज आपके साथ भी है। And Amen. today he wants to heal all your sick people. और आज वो जो लोग आज गुनाह की बीमारी में गुनाह की गुलामी में फंसे हुए हैं, आज वो हमें शिफा देने को है। Amen. 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 And so please, one by one, let the sick people come forward and be healed. और आज मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जो भी लोग गुनाह की बीमारी में या कोई बदनी बीमारी में मुब्तला है, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आगे आए और मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। हाँ, जो कोई दुआ करवाना चाहता है आ जाए। Jesus is the one who will heal you. I'm just the वो messenger. तो गवाहियां भेजियां ने तो भी पेश कर दे। Yes. Okay. So we have some people who want to come in the front, and so we will be going to pray for them. Okay. Bring the sick people Okay. forward. Yes. दस दे। Problem. Okay, the one with the Joints, fever, come shoulder. forward, please. Joints. जिसको मसला है. Yeah. Okay. There In the is a name girl. of Jesus, Yes. I खुदावंद यीशु मसीह I command this fever to leave her now. खुदावंद मैं तेरे हजूर आती हूँ और मैं इन खूबसूरत चेहरों को और इन खूबसूरत बदनों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। Be healed in the name of Jesus. यीशु अल मसीह के वसीला और उस कादर नाम के वसीला से मैं दुआ करती हूँ कि ये पट्ठों का जो भी मसला है अभी जाता रहे। Okay, please check if she's okay. Yes. Let's continue. Please check if she is okay. Okay, gotta check करो थोड़ा। Yeah, she feels better right now. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Next one. Okay, next one. इसके अलावा क्या? Okay, now we have another girl. She is suffering in a fever from past few months. Fever. Yeah, fever. Okay. In the name of Jesus, हम यीशु मसीह के नाम से I command this fever to leave now. मैं इस बीमारी और इस बुखार को हुक्म देती हूँ Let there be healing in your body now in Jesus' name. कि अभी पूरे जिस्म में शिफा को मांग लेती हूँ। Thank you, Jesus. Please check. खुदावंद हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्या चेक करें? Yes, she's happy and she is healed right now. Okay, praise the Lord. Next person, Yes, please. I am खुदावंद के जलाल के लिए तालियां बजाएं।
In the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से, खुदावन यीशु मसीह के नाम से I command every sickness to leave now. और मैं तमाम तरह की बीमारी, कमजोरी और तारीकी को हुक्म देती हूँ कि इन बदनों को आज छोड़ें। Every spirit that brings sickness to leave now. और हर तरह की बदनी कमजोरी जो इस वक्त है वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। Every witchcraft broken now. और हर तरह की बुरी तासीर यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। I release healing into your bodies now. और मैं यीशु के नाम में आप बदनों में शिफा को मांगती हूँ। By the stripes of Jesus, you were healed. और यीशु मसीह के नाम से हम ये शिफा को पाते हैं। Be healed इसी वक्त शिफा and stand and walk in your healing now. और वो तेरी शिफा में, तेरे कलाम में और तेरी कुदरत में आज से बढ़ना शुरू हो जाए। Full healing for all of you. और आप तमाम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके लिए मुकम्मल शिफा को मांगती हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। For the people who have not yet received Jesus and they want to receive him, now is your opportunity. और अगर कोई ऐसा शख्स यहाँ पे मौजूद है जिसने अभी तक अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा नहीं कबूल किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे पास मौका है कि हम उसको अपना नजात दहिंदा कबूल कर सकें। And this is done by faith. और आज ये जो वक्त है ये ईमान रखें कि ये बहुत कीमती वक्त है। All you have to do is speak now and invite him into your heart. मैं आज आपसे दुर्खास्त करती हूँ और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं अपना दिल और अपना हाथ बढ़ाती हूँ कि आप इस खुशखबरी को मेरे साथ मिलकर कबूल करें। Let's do that now. Jesus Christ, I invite you into my heart. आए मैं सबसे दुर्खास्त करूंगी कि आप सब अपने दिलों पर हाथ रखें और मेरे पीछे पीछे बोले। Speak to him. Jesus Christ, Yes. I invite you into my heart. आए आप सब मेरे साथ बोले, ऐ खुदावन यीशु आज हम तुझे अपने दिलों में खुशामदीद कहते हैं। He can hear you. He's there with you. आज वो आपको शिफा देने वाला है। When you invite him into your heart, he will come to live inside you. और जब आप उसको अपने दिलों में दावत देंगे तो वो जरूर आपके दिलों को छूने आएगा। So speak to him now. Tell him, Jesus, come to live inside me. आज उससे बात करें और उससे बोले और उससे कहें कि खुदा तुम्हारे दिलों को, हमारे बदनों को छू। I accept you as my Lord and Savior. आज मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता या करती हूँ। I believe you are the Son of God. मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ या रखता हूँ कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। I believe that you are alive. आज मैं शुक्रगुजारी करती हूँ और इस बात पर ईमान रखता या रखती हूँ कि तू जिंदा खुदा का बेटा और तू दुनिया का नूर है। Tell him now to come into your life. आज उससे कहें कि वो आपकी जिंदगियों में आए and ask him to give you his Holy Spirit. और उससे कहें और उससे पूछें कि खुदा तुम मुझसे क्या चाहता है।
And so those who have received Jesus now, I want to pray that you receive the Holy Spirit. और आज जितनों ने अभी तक रूहुल कुद्दस को नहीं अपनी जिंदगियों में अपनाया वो भी इसको Father, I ask that you give them your Holy Spirit. और खुदावन मैं तुझसे दुआ करती हूँ तुझसे कहती हूँ कि खुदावन तू इनको अपने रूह से भर Give them a new life. खुदावन आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये इनको एक नई जिंदगी दे In Jesus' name. यीशु अल मसीह के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं आमीन Amen. यस आमीन हम सब खुदा के जलाल के लिए और इस जिंदा कलाम के लिए जोर से तालियां बजाएं और हम Praise the सिस्टर Lord. को